बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Peshawar Public School and College. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will discuss about chapter number 13, S&P block elements, lecture number 11. The topic of our discussion is atomic and physical properties of group 2 elements, flame test for the group 1 and group 2, and trend in reactivity with water, oxygen and nitrogen. Now the learning objectives of these topics are trend in atomic radius, trend in ionization energy, trend in electronegativity, trend in melting and boiling point. Next is flame test, the chemical properties. In chemical properties we will discuss about reactivity with water, reactivity with oxygen, reactivity with nitrogen. Now look at the periodic table. As today we will discuss about the atomic and physical properties of the group 2. So as given on the left side in the second block, group 2 elements, which are also called alkaline earth metals. The elements of the group 2 are given: beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. Now we will discuss in detail about their properties. The elements in the group 2, they are sometimes called alkaline earth metals because their oxides and hydroxides, they are alkaline in nature. Like when they were dissolved in water, they give alkalis or bases. Now these elements, the elements of the group 2 like calcium, strontium, barium and radium, they in many ways they have similar properties to the group 1, but they are less reactive as compared to the group 1 elements. The oxidation number of the group 2 element is +2 and they are located on the top on the left side of the periodic table. When they lose 2 electrons, they gain stability and they form ionic compounds because they involve the formation of ionic bond. The elements of this group, they are mostly soft, hard as compared to the group 1 elements, but soft, and they are silver in color as shown in the figure. Now the electronic configuration of these elements are all of the elements of this second group, they have 2 electrons in their S subshell as shown in the figure. All have S subshell and they have 2 electrons in the S subshell. Now we will discuss about the different trends. Number 1 is the trend in atomic radius. As you already know about the definition of the atomic radius, so here I will discuss about the trend. When we go from top to bottom in group 2, the atomic radius will increases. So now how the atomic radius increases when we go from top to bottom, we will discuss in detail about the trend. So the atomic radius actually it depends upon the 2 factors. Number 1, the number of layers of electrons around the nucleus. जैसे हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के जो है और वैलेंस शेल में नंबर ऑफ शेल्स जो है वो कितने हैं, एंड द पुल द आउटर इलेक्ट्रॉन्स फील फ्रॉम द न्यूक्लियस. फिर जितने ज़्यादा नंबर ऑफ शेल्स होंगे वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान में, तो जो न्यूक्लियस का पावर होगा आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे उसको खींचने की जो सलाहियत होगी न्यूक्लियस की वो कम हो जाएगी. जितने नंबर ऑफ शेल्स जो है वो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान में ज़्यादा होंगे तो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी. As there are more filled shells between the nucleus and the outer electrons, so the outer electrons, they are more shielded from the attraction of the nucleus. So the electron in the higher energy levels, they are farther from the nucleus and the atomic radius increases. Actually जैसा कि हम पिछले टॉपिक्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो एटॉमिक रेडियस में जो इंक्रीज़ हो रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वो सबसे पहले 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. नंबर 1, द नंबर ऑफ़ शेल्स और द नंबर ऑफ़ लेयर्स प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल. और नंबर 2, इट डिपेंड अपॉन द पुल ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स. सो जो पहला फैक्टर है वो ज़्यादा काउंट करता है, जैसे कि पिछले टॉपिक्स में भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ शेल्स होंगे न्यूक्लियस में और आउटर मोस्ट शेल में,
उतना ज़्यादा जो न्यूक्लियस का जो पावर है या बाउंड है आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन पे वो कम हो जाएगा, और उससे इलेक्ट्रॉन्स का जो निकालना है वो भी इजी हो जाएगा, जैसे आगे हम आयोनाइजेशन एनर्जी में डिस्कस करेंगे। लेकिन जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ शेल्स होंगे न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल में, इट मीन्स कि उसका जो साइज़ है हम कहेंगे कि वो नंबर ऑफ़ शेल के इंक्रीज़ होने से टॉप टू बॉटम जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। Now the comparison between the atomic radius of group 1 and group 2 elements, as given in the on the right side in the figure, that the group 2 elements, they have smaller atomic radius as compared to the group 1 elements. But how and why? So now the alkaline earth metals, they have higher nuclear charge, and therefore the electrons, they are attracted more strongly toward the nucleus. So as a result, their atomic and ionic radius are smaller than those of the alkali metals. Actually अगर हम देखें तो जो ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैं उनका जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो +1 होता है, जबकि जो ग्रुप 2 का अगर हम देखें तो उनका न्यूक्लियर चार्ज +2 होता है। इट मीन्स कि वो न्यूक्लियस की तरफ जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे, क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो न्यूक्लियस के ऊपर है, तो वो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स को मोर अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से उनका जो साइज़ है वो कम हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे डिस्कस हुआ है कि एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई, दे आर स्मॉलर देन दोज ऑफ द अल्कली मेटल्स। यानी जो ग्रुप 2 के जो आयोनिक रेडियाई मीन्स रेडियस ऑफ आयन, एंड एज वी हैव डिस्कस इन द कैटायनिक रेडियाई एंड एनायनिक रेडियाई, एंड एटॉमिक रेडियस इज द रेडियस ऑफ एन एटम। सो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स का चूँकि न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनके चूँकि आउटर शेल में उनके इलेक्ट्रॉन्स 2 है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 1, जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और उनका चार्ज जो है वो +1 है। तो ग्रुप 2 जो है न्यूक्लियस का की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उन पे ज़्यादा होंगी, जिसकी वजह से उनके साइज़ में जो है वो कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो ग्रुप 2 का एटॉमिक साइज़ है वो ग्रुप 1 के मुकाबले में कम होगा। Now trend in first ionization energy, as we already know from the definition of the ionization energy. Here we discuss about the trend. When we go from top to bottom in group 2, the ionization energy value, it will decreases. So now we are going to discuss about this trend, that why the ionization energy decreases when we go from top to bottom. Here are again some factors given, like there are more filled shells between the nucleus and the outer electrons, and these shields the outer electrons from the attraction of the nucleus. So the radius of the atom increases, so the distance between the nucleus and the outer electrons increases. Therefore, the force of attraction between the nucleus and the outer electron is reduced, so less energy is needed to remove an outer electrons. Actually, here it is discussed कि अगर हमारे पास जो न्यूक्लियस है, जैसे कि हमने एटॉमिक रेडियस में भी डिस्कस किया, अगर न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल में जितने जितने नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होंगे, इट मीन्स के नंबर ऑफ़ शेल्स के बढ़ने से जो एटम का या आयन का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। फिर न्यूक्लियस का जो यहाँ पे जैसे सेकंड पॉइंट में डिस्कस हुआ है कि दीज शील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, मीन्स जितने दरमियान में नंबर ऑफ़ शेल्स ज़्यादा होंगे उतना वो न्यूक्लियस की नज़र से जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो दूर हो जाएंगे, न्यूक्लियस की पॉइंट से भी, न्यूक्लियस के जो बाउंड से भी, उससे भी। इसके अलावा जो जैसे हमने डिस्कस किया कि नंबर ऑफ़ शेल्स के इंक्रीज़ होने से रेडियस ऑफ एटम इंक्रीज़ हो जाएगा, सो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्टेंस होगा वो न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा वो ज़्यादा, जिसकी वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन्स में वो कम हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन का निकालना अब आसान हो जाएगा। इट मीन्स कि जितना जितना एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होगा उतनी ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ होंगी। Now, if we if we look at the ionization energy values of the barium and radium, look at the book on page number 25. The different values of the first ionization energies are given, in which the barium has about 5.2, while the radium has 5.3. As we have discussed that the ionization energy, it will decreases from top to bottom, but here radium comes after barium and its ionization energy is greater than barium. So now what is the reason behind it? Now we are going to discuss about the reason. Like here is irregularity between the barium and radium. So the reason is like the ionization energy value of the barium, it is less than radium. Although in trend from top to bottom the ionization energy decreases. So the reason of increase in the value of ionization energy of radium is actually the presence of F subshell.
when we write the electronic configuration of the radium in the textbook, it is given on page number 24. So as you already know from your first year course that the S subshell is near to the nucleus as compared to P, P is near to the nucleus as compared to D, and D is near to the nucleus as compared to F. It means F subshell, it is very far from the nucleus, so it do not shield the 7s which are the valence electrons more effectively, due to which these 7s electrons, they are attracted more toward the nucleus, and the removal of these 7 electrons from the radium, it requires more energy. So ionization energy, it increases from barium to radium. Now I can discuss it in simple words. यहाँ पे बात हुई है कि आपके पास जो रेडियम है, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि टॉप टू बॉटम जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो डिक्रीज़ होती है, जबकि रेडियम एंड में है और उसकी फिर दोबारा से थोड़ी सी पॉइंट का फ़र्क आया है, इंक्रीज़ हुई है। तो वो इंक्रीज़ किस वजह से है? क्योंकि अगर हम रेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, जैसे कि बुक में आपको प्रोवाइडेड है पेज नंबर 24 पे, तो जो रेडियम है उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में एफ़ सबशेल भी इन्वॉल्व है, जबकि एफ़ सबशेल जो है वो न्यूक्लियस से बहुत दूर होता है, जिसकी वजह से अगर एफ़ सबशेल मौजूद है अंदर 7s से पहले, जब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो वो ये प्रॉपर ज़्यादा ये जो शील्ड बनाता है, यानी शील्ड की तरह एक्ट करता है, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूक्लियस में और जो वैलेंस शेल होगा उसके दरमियान में जो शेल्स होंगे जितने ज़्यादा होंगे तो वो जो न्यूक्लियस है वो शील्ड करेंगे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को, यानी न्यूक्लियस की पहुंच से वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस उसको अच्छी तरह बाउंड नहीं कर सकेगा और उसका रिमूव करना आसान होगा। तो यहाँ पे जो एफ़ सबशेल है उसकी शील्डिंग इफ़ेक्टिव नहीं होती, ठीक है, क्योंकि वो न्यूक्लियस से बहुत दूर है। उसके बाद आता है हमारे पास 7s वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो जब एफ़ उसको प्रॉपरली शील्ड नहीं कर पा रहा, मीन्स यानी न्यूक्लियस की पहुंच से 7s को जो है ज़्यादा नहीं छुपा सकता, जिसकी वजह से 7s से इलेक्ट्रॉन्स का जो वो है 7s पे जो न्यूक्लियस का बाउंड है वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि एफ़ की जो शील्डिंग इफ़ेक्ट है वो मोर इफ़ेक्टिव है, जिसकी वजह से यहाँ पे गिवन है जैसे कि इट डू नॉट शील्ड द 7s वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मोर इफेक्टिवली, ड्यू टू विच दीज 7s इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड मोर टुवर्ड द न्यूक्लियस। अब जैसे मैंने आपको कहा कि एफ़ सबशेल जो है वो न्यूक्लियस से दूर है और वो प्रॉपरली इफ़ेक्टिव उसकी शील्डिंग नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि जो न्यूक्लियस है वो 7s इलेक्ट्रॉन्स को मोर अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि एफ़ की जो शील्डिंग है वो इफ़ेक्टिव नहीं है, यानी वो न्यूक्लियस से 7s इलेक्ट्रॉन्स को, यहाँ पे रेडियम की केस में हम बात कर रहे हैं कि वो अच्छी तरह से उसको कवर नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो 7s इलेक्ट्रॉन्स पे ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से उसका निकालना मुश्किल हो गया है। अब हम कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में कि ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है? ये एफ़ सबशेल की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से अब हमें आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी, मींस मोर एनर्जी रिक्वायर होगी 7s से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। किस वजह से? क्योंकि एफ़ उसको न्यूक्लियस के दरमियान में और 7s के दरमियान में एफ़ मौजूद है, जो कि प्रॉपरली शील्ड नहीं करता, उसकी जो शील्डिंग इफ़ेक्ट है वो मोर इफ़ेक्टिव नहीं है। किस वजह से? क्योंकि वो न्यूक्लियस से बहुत दूर होता है, जिसकी वजह से अब न्यूक्लियस का बाउंड 7s पे बढ़ जाता है और उसमें से इलेक्ट्रॉन का निकालना मुश्किल हो जाता है, इसलिए रेडियम की जो एनर्जी है आयोनाइजेशन वो थोड़ी सी बेरियम के मुकाबले में इंक्रीज़ हो जाती है। नाउ कंपेरिजन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द ग्रुप 1A and group 2A. Here the ionization energy of the group 1A, it is higher as compared to the ionization energy of the group 2A. As in our previous classes, we have discussed only the first ionization energy and the second ionization energy, and we have discussed in detail that the second ionization energy is greater than the first ionization energy. But here we are discussing that the difference between the ionization energy of the group 1A and the group 2A. We are not going to discuss about the first and the second ionization. We are going to discuss about the ionization energy of the group 1A and the group 2A. There is a comparison between the ionization energy of group 1A and group 2A. Now, as the second electron in case of the alkali metal, it is to be removed from a cation, so which has already acquired the stable noble gas configuration. असल में यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अल्कली मेटल जब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और अगर आप जब उसके ऊपर, जैसे मैं सोडियम की एग्जांपल ले सकती हूँ समझाने के लिए
कि सोडियम से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन उसमें से रिमूव हो जाए तो सोडियम के ऊपर +1 चार्ज आ जाता है, और सोडियम का पीछे जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रह जाता है, जो शेल होता है, सेकेंड शेल जो होता है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। अब होता क्या है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, और उसके आखिरी अब सेकंड शेल में जो है, जिस इसका लास्ट शेल बन गया, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं, तो वो स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन है। अब अगर हम उसमें से एक और सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो इसका मतलब है कि हम नोबल गैस कन्फिग्रेशन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो कि बहुत मुश्किल है उसमें से इलेक्ट्रॉन का निकालना। 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, अब आखिरी शेल उसका 8 इलेक्ट्रॉन वाला बन गया है, उसमें से इलेक्ट्रॉन का निकालना मुश्किल हो रहा है। लेकिन अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल की एग्जांपल लें और उसमें से हम एक उसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि अल्कली मेटल के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। एक जब आपने रिमूव किया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, सेकेंड वाला आप उसके उस शेल से रिमूव कर रहे हैं जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, जिससे रिमूव करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल में चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स आखिरी शेल में मौजूद हैं, जब आप एक रिमूव करते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब अगर आप दूसरा रिमूव करते हैं, क्योंकि दूसरा भी उसी शेल में मौजूद है जिससे आपने पहला शेल रिमूव किया, तो उसको रिमूव करना थोड़ा सा बेशक पहले के मुकाबले में रिमूव करने के मुकाबले में, यानी फर्स्ट एनर्जी जिस तरह हमने डिस्कस की है रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, उसके मुकाबले में तो मुश्किल है। लेकिन अल्कली मेटल्स से जो हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं उसके ऑक्टेट वाले शेल से, यानी जो सेकंड शेल था, वो मुश्किल है इसके मुकाबले में, क्योंकि यहाँ से ये इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। जैसे यहाँ पे बात हुई है कि इन केस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल द सेकंड इलेक्ट्रॉन इज टू बी रिमूव फ्रॉम अ कैटाइन विच इज़ येट टू एक्वायर द स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन। मीन्स जब हमने अल्कलाइन अर्थ मेटल से आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, एक रिमूव किया तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया न्यूक्लियस के ऊपर। अब इसमें से हमने इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो उसमें ये तो नहीं हो रहा कि वो आखिरी जो है वो अपना ऑक्टेट पूरा कर रहा है, बल्कि उसका ऑक्टेट उससे पिछला वाला शेल है। ठीक, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का निकालना ईजी होगा एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 1 एलिमेंट। अगर हम वहाँ से सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो ऑक्टेट डिस्टर्ब होगा, इस केस में ऑक्टेट डिस्टर्ब नहीं होगा। Therefore, the removal of the second electron in case of the alkaline earth metal require much less energy than in case of the alkali metals. यानी अब क्या होगा कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन का निकालना सेकेंड ग्रुप से इजी है, तो लेस एनर्जी रिक्वायर होगी, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड ग्रुप जो है वो लेस होगी एज़ कम्पेयर टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ग्रुप। सो द आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी हम उसको कह सकते हैं ऑफ मैग्नीशियम, इट विल बी हाई बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैज़ टू बी रिमूव फ्रॉम द स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन। अब यहाँ पर हमने, जैसे मैंने पहले आपको डिस्कस किया कि हमने सोडियम की एग्जांपल ली थी, तो सेकेंड ग्रुप में हम मैग्नीशियम की एग्जांपल ले सकते हैं। Now next is the trend in electronegativity. In the same way, when you already know about the definition, so now we will discuss about the trend. When we go from top to bottom in group 2A, the electronegativity value, it will decreases. So what about the reason? Now the reason of this trend is like when we go from top to bottom, first of all the atomic radius increases and the outer electrons, they are more shielded from the attraction of the nucleus. More shielded from the attraction of the nucleus, so the electrons will be less strongly attracted to the nucleus. It means जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, सो मोर शील्डेड का मतलब ये है कि उसके जो न्यूक्लियस है और जो आउटर मोस्ट शेल है उसके दरमियान में नंबर ऑफ़ शेल्स और इंक्रीज़ हो रहे हैं, जिनकी साइज़ बढ़ रहा है। जैसे कि आप जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जब हम एक ही ग्रुप में दूसरे पीरियड में शिफ्ट होते हैं, एक ही ग्रुप की मैं बात कर रही हूँ, तो नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ होते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होता है। इसका मतलब ये है कि हम शील्डिंग इफेक्ट के केस में कह सकते हैं कि नंबर ऑफ़ शेल्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर मोर शील्डेड फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। इस जुमले का मतलब ये है कि अब न्यूक्लियस का उसके पे जो बाउंड है वो कम हो गया है, क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर हो गए हैं जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं। एज द मेटल एटम गेट्स बिगर, any bonding pair gets further and further away from the metal nucleus and so less strongly attracted toward it. So down the group the elements become less electronegative. अब जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होता है, और जब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होता है तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस भी आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स का इंक्रीज़ होता है। तो अब जो कोई भी, जैसे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पढ़ चुके हैं कि इट इज़ द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन अ कोवेलेंट बॉन्ड।
सो अब जो बॉन्डिंग पेयर होगा उसको न्यूक्लियस चूँकि वो दूर होगा न्यूक्लियस से साइज़ बड़ा होने की वजह से एटम का, तो वो उसको इतनी स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर सकता। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो इसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है, एबिलिटी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर या बॉन्ड पेयर, वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो टॉप टू बॉटम हमारे पास जैसे कि टेबल में भी शो हुआ है, ग्राफ में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होती है। बेरिलियम सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है जबकि बेरियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। नाउ इन द सेम में जैसे कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कंपैरिजन, here we also discuss the comparison of electronegativity of group 1a and group 2a. So the alkaline earth metal, they are more electronegative than alkali metals. here यहाँ पर अगर आप देख लें टेबल में भी गिवन है, उसकी वैल्यूज़ भी गिवन है। सो व्हाट इज़ द रीज़न कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पीछे हमने डिस्कस किया कि वो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो उनकी कम होती है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन्स का जो निकालना है वो इजी हो जाता है। सेकंड इलेक्ट्रॉन की बात हमने की थी। यहाँ पे डिस्कस करें कि अल्कलाइन अर्थ मेटल आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो एक्चुअली जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, यानी पहले ग्रुप में हमारे पास जो न्यूक्लियर चार्ज है वो +1 है, इसके अलावा जो उसका एटॉमिक रेडियस है वो कम है, ज़्यादा है अल्कली मेटल्स का। जबकि जब हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की तरफ जाते हैं तो जैसे जैसे उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड होता है आखिरी शेल में, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो जाता है, +2 बन जाता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, जिसकी वजह से साइज़ जो है वो उसका कम हो जाता है। यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल का साइज़ जो है वो अल्कली मेटल्स से छोटा है, जबकि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज़्यादा है अल्कली मेटल्स के मुकाबले में। तो ये भी रीज़न है कि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है वो ईज़िली अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ एज़ कम्पेयर टू अल्कली मेटल ड्यू टू इंक्रीज़ इन न्यूक्लियर चार्ज. So these are the reasons of increase in the electronegativity value of group 2 as compared to group 1. Now trend in melting and boiling point, as you already know about the definition of the melting and boiling point, so we discuss about the trend as we go from top to bottom. In group 2a, the melting and the boiling point values, it will there is a decrease, but the decrease is not regular. There are some irregularities, so we will discuss it in detail now. As they have given the group 2 elements, they have high melting and boiling point typical of the giant metallic structure than those of the group 1 element. Actually जो group 1 के elements होते हैं उनके जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं वो तकरीबन एक जैसे होते हैं, जबकि जो ग्रुप 2 के एलिमेंट हैं उनके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आपस में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। अगर आप ऊपर देखिए ये मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ द ग्रुप 2 एलिमेंट्स है, जबकि अगर आप नीचे देखें ये बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द ग्रुप 2 एलिमेंट्स गिवन है आपको। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं ट्रेंड की, कि नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर मोल कंट्रीब्यूट टू द डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन सी इज़ ग्रेटर। अब अगर आप जैसे मेटालिक बॉन्ड में हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी से हम जानते हैं, तो जो ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैं उनके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि ग्रुप 2 एलिमेंट्स के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ग्रुप 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके इन्वॉल्व होते हैं मेटालिक बॉन्ड में, जबकि ग्रुप 1 के ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है मेटालिक बॉन्ड में। इसके अलावा अगर हम टॉप टू बॉटम की तरफ आएँ तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूजली बाउंड होते हैं, as they have given the number of valence electron per mole contributed to the delocalized electron C is greater. So group 2 elements have higher ionic charge, that is why the group 2 elements, they have high melting and boiling point than those of the group 1 element. These are the reasons for which are like we say that the group 2 elements, they have high melting and boiling point than the group 1. So what's the reason? Actually in group 2 they provide 2 electrons in the for metallic bond in the electron C, and they also they have high charge which is +2 as compared to the group 1 elements, due to which their melting and boiling point values are higher than the group 1 elements. Now we are going to discuss about the irregularities which are present in the graph. Like if you look at the graph, the beryllium has high melting point in the same way in the boiling point, but the magnesium boiling and melting point it will decreases, then at calcium it increases, then at strontium in case of boiling point it will decreases, but in case of melting point it is there is a regular trend from calcium to barium, like a decrease from calcium to barium occur.
but in case of boiling point graph, there's a decrease in magnesium, and then from calcium to barium it's not regular. Like the boiling point trend is not regular, but in melting point there is irregularity only at the magnesium. So now we will discuss it in detail. Here is also given like the attractive force between the ions and the electrons, they are stronger. Where they are stronger? In case of group 2 element they are stronger. So in case of group 2 element, the metallic bond, the strength of metallic bond is stronger, so the group 2 element that's why they have higher melting and boiling point as compared to group 1. Here are also some of the reasons given of the previous talk. So here as in the C point they have given that the melting point of the element decreases going down the group, starting with the calcium, as magnesium does not follow the trend. So now we will discuss about the trend in the boiling point, but there does not appear to be a trend in the boiling point going down the group. Again, magnesium is an anomaly. Anomaly means there is irregularity, it shows different behavior. So the boiling point decreases from beryllium to strontium and then increases to radium, as I have discussed in the graph. So now why magnesium is an anomaly in the group 2? इट मीन्स कि मैग्नीशियम का जो बिहेवियर है यानी इसमें बॉइलिंग पॉइंट में भी और मेल्टिंग पॉइंट में भी डिक्रीज़ क्यों आ रहा है ग्रुप 2 में? जब हम डिस्कस करते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को टॉप टू बॉटम, तो मैग्नीशियम में डिक्रीज़ क्यों आ रहा है? So now the reason is when we discuss about the melting and the boiling point of the group 1 and group 2, in group 1 there is no anomaly. यहाँ पे हमारे पास ग्रुप 1 का ग्राफ तो नहीं है, लेकिन ग्रुप 1 अगर हम मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करें, जैसे कि हमने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया था, वहाँ पे कोई इरेगुलरिटी नहीं थी, यानी टॉप टू बॉटम जो था हमारे पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की जो वैल्यू थी वो इंक्रीज़ हो रही थी, क्योंकि वो स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड पे डिपेंड कर रही थी। जितना जितना लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन थे और उसका जो स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड था वो इंक्रीज़ हो रहा था, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही थी। लेकिन यहाँ पे चूँकि मैग्नीशियम में दोनों उसमें ग्राफ में मेल्टिंग पॉइंट में भी और बॉइलिंग पॉइंट में भी मैग्नीशियम डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है, वहाँ पे डिक्रीज़ है। तो ये डिक्रीज़ क्यों है? अब जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया कि जब हम ग्रुप 1 में बात करते हैं तो ग्रुप 1 में तमाम जो एलिमेंट्स है ग्रुप 1 के, उनके सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा, यानी उनके जो एटम्स की अरेंजमेंट होगी, क्रिस्टल सिस्टम जो होगा वो क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल को हम BCC से शो कर सकते हैं, जैसे कि डायग्राम में भी गिवन है, पिक्चर में भी। But in group 2, different elements has different type of crystal structure. It means their melting and boiling point depend upon the type of packing in the crystal system and its crystal structure. जबकि हम अगर ग्रुप 2 की बात करते हैं तो ग्रुप 2 में तमाम एलिमेंट्स के क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंट है। फिर अगर एक किस्म का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है तो उसमें जो पैकिंग है बाज़-औक़ात क्लोज्ड पैकिंग है, बाज़-औक़ात जो है वो ज़्यादा क्लोज नहीं है, लूज़ पैकिंग है। जैसे बेरिलियम की हम बात करें तो उसमें जो है हेक्सागोनल जो है क्लोज पैकिंग है, जैसे जो लास्ट में स्ट्रक्चर गिवन है इस किस्म का इसका स्ट्रक्चर होता है मैग्नीशियम का और बेरिलियम का। लेकिन बेरिलियम में चूँकि कम्पैक्ट पैकिंग है तो उसका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट हाई है, जबकि मैग्नीशियम में पैकिंग थोड़ी सी लेस कम्पैक्ट होती है बेरिलियम के मुकाबले में, तो वो कम हो जाता है स्ट्रक्चर। हालांकि इसका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। इसी तरह स्ट्रॉन्शियम और कैल्शियम में फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है FCC, जो कि सेंटर में गिवन है, फर्स्ट ईयर में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जबकि बेरियम और रेडियम में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है, जिसको हम BCC से नोट करते हैं। तो इसलिए जो ग्रुप 2 में इरेगुलरिटीज़ इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, स्पेशली एट मैग्नीशियम, वो डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर की वजह से है। Now what is flame test? As we have discussed flame test in the we have performed also in the metric course in the practical notebook. It's given and you already know a little bit, but here we discuss in detail. Flame test is actually a qualitative test and it is used to detect the presence of certain elements or metal ions in the given sample. Like if we take a salt and it contains anions as well as the cations. So the cations are mostly metal element and the anions are non-metal. So in the cations, mostly the transition of electron occur from the lower, from the ground state to the higher energy state when they absorb energy from the flame. And then when they again come back from the excited state to the ground state, they emit energy. And the energy, if it is emitted in the visible region, we observe it in the form of color of a different wavelength or frequency, different terminologies we use for it.
Now here we can define it as, this is a qualitative test and it is used to detect the presence of certain element or metal ions in the given sample. Each metal ion it give its own characteristic color to the flame. अब आगे जैसे अभी आपको मैं शो भी करूँगी, चूँकि हर मेटल जैसे सोडियम क्लोराइड है तो उसमें जो सोडियम है वो एक मेटल है, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ईज़िली जो है एक्साइट हो जाते हैं और फिर डी एक्साइटेशन के दौरान वो कलर प्रोड्यूस करते हैं विजिबल रीजन में। फ्लेम से पहले एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है और फिर जब डी एक्साइट होते हैं तो एनर्जी रिलीज़ करता है, जो कि आपको कलर के फॉर्म में नज़र आता है। और अब सोडियम के अलावा जो और एलिमेंट हैं, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप दोनों यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हर एलिमेंट का अपना एक स्पेसिफिक कलर होता है। बाज़ एलिमेंट्स कलर प्रोड्यूस नहीं करते इस वजह से क्योंकि उनकी फ्लेम कलरलेस होती है, फ्लेम का कोई कलर नहीं होता, क्योंकि वो उनके जो इलेक्ट्रॉन जो डी एक्साइट होके आते हैं और जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो विजिबल रीजन में रिलीज़ नहीं होती, बस बल्कि विजिबल के अलावा किसी और रीजन में रिलीज़ हो जाती है। Now the procedure of the flame test is, first of all we take a platinum or nichrome. Nichrome is a nickel chromium alloy. We dip it in the concentrated HCl and then we hold it in a hot or non-luminous Bunsen flame. Why we dip it in the concentrated HCl, we discuss it now in detail. Actually here is given a non-luminous flame. Non-luminous mean which do not give any light, but it reflects the color of other element, the light of other element in the form of colors. So first, as they have given that we dip it into the concentrated HCl. So the platinum wire, first it is dipped in the concentrated HCl, but repeat this until the wire does not produce any color in the flame. Actually, the wire is also made up of platinum. So if it emit color, if it give color in the flame, this color will be due to the electrons of the platinum or maybe due to electron of the nickel or chromium. So that's why we repeat this process until the wire do not produce any color in the flame. Now when the wire is clean, moist it with again with some of the acid and then dip it into a small amount of the solid salt so that the salt sticks to the wire. Now again put the wire into the flame and note the flame color, which is the characteristic color of the sample salt. अब दोबारा हम एक दफ़ा फिर कंसनट्रेटेड HCl में डिप कर लेंगे और फिर सॉल्ट में डिप करेंगे। सॉलिड साल्ट सैंपल हमारे पास मौजूद होंगे और फिर जब हम फ्लेम में उसको होल्ड करेंगे और कुछ देर के बाद जैसे वो फ्लेम से एनर्जी लेके उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेंगे, फिर वापस एनर्जी जो है वो डी एक्साइटेशन के दौरान रिलीज़ होगी, जो कि हमें एक कलर के फॉर्म में नज़र आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं, लाइक व्हाई द क्लोराइड्स ऑफ द मेटल एलिमेंट आर यूज्ड फॉर द फ्लेम टेस्ट, यानी हम क्लोराइड्स फॉर्म ही क्यों यूज़ करते हैं, जैसे HCl ही हम क्यों यूज़ करते हैं यहाँ पे। Actually, the metal chloride, they are usually more volatile than the other salts. That's why metal chlorides are dipped in the concentrated, metal salts are dipped in the concentrated HCl to convert them into chloride form. अब ज़रूरी नहीं कि हम जो सॉल्ट सैंपल ले रहे हैं तो हमारे पास वो जैसे सोडियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड होगा, बल्कि हम कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट नाइट्रेट कार्बोनेट कुछ और भी ले सकते हैं। अब अगर हमारे पास वो फॉर्म्स होंगे तो वो मोर एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और वो ज़्यादा वोलेटाइल नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो हम उसको क्लोराइड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम HCl में उसको जो है डिप करेंगे ताकि वो क्लोराइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। HCl में डिप्ट होगा आपका रॉड और उसके बाद आप उसको सॉल्ट में डिप करेंगे ताकि आपके जो सॉल्ट है वो जो है HCl में डिज़ोल्व करके पेस्ट बना के भी हम यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो सॉल्ट का कोई और अगर फॉर्म हो कार्बोनेट या सल्फेट तो वो क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि क्लोराइड्स जो है वो मोर वोलेटाइल है, वो ईज़िली इलेक्ट्रॉन उसके एक्साइट और डी एक्साइट होते हैं और ईज़िली वो फ्लेम कलर देते हैं। क्लोरीन एटम डू नॉट एमिट एनर्जी इन द विजिबल रीजन। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि जो हमारे पास क्लोराइड फॉर्म है, सोडियम क्लोराइड है, तो क्या उसमें क्लोरीन का कलर है या नहीं सोडियम का कलर है? तो यहाँ पे इसका आंसर है कि इन फ्लेम टेस्ट इलेक्ट्रॉन इन बोथ द मेटल एटम एंड द क्लोरीन एटम आर एक्साइटेड टू द हायर एनर्जी लेवल, सो दीज मेटल एटम एमिट लाइट इन द विजिबल रीजन वाइल इन क्लोरीन एटम द एमिटेड लाइट इज़ नॉट इन द विजिबल रीजन। अच्छा, यहाँ पर आपको आंसर मिल जाता है कि हमारे पास जो फ्लेम टेस्ट है, फॉर एग्जांपल हम सोडियम क्लोराइड यूज़ कर रहे हैं, तो क्या उस फ्लेम का जो कलर है वो सोडियम की वजह से है या नहीं क्लोरीन की वजह से है? तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाता है कि जो मेटल है, चाहे सोडियम हो या जो भी हो, वो इमिट करता है विजिबल लाइट में रीजन में आपको कलर देता है, लाइट इमिट करता है, जबकि जो क्लोरीन एटम है वो उसकी जो लाइट होती है वो विजिबल रीजन में इमिट नहीं होती। इसलिए जो फ्लेम का कलर होगा वो उस मेटल की वजह से होगा जो सॉल्ट में मौजूद है, वो क्लोरीन की वजह से नहीं होगा।
यहाँ पर आपको कुछ फ्लेम टेस्ट के डिफरेंट कलर्स जो है एलिमेंट्स के गिवन है, उसमें फर्स्ट ग्रुप के भी आ जाते हैं, सेकंड ग्रुप के जैसे लिथियम ब्राइट रेड कलर देता है, सोडियम ब्राइट येलो, पोटेशियम जो है लाइलेक पिंकिश जो है पर्पलिश सा है, कैल्शियम ब्रिक रेड और स्ट्रॉन्शियम जो है ब्राइट रेड, बेरियम जो है पेल ग्रीन, बेरिलियम और मैग्नीशियम आपको कोई कलर नहीं देता, इसलिए इनके क्लोराइड्स जो है वो सॉल्ट्स आपको गिवन हैं और उनके डिफरेंट फ्लेम कलर्स आपको पिक्चर में प्रोवाइडेड हैं। एंड में आपको इसकी एक वीडियो भी इंशाल्लाह प्रोवाइड की जाएगी लेक्चर के बाद। Now trend in reactivity with water of the group 2 elements. Now we are going to discuss about the chemical properties. So how the group 2 elements, as we have discussed in our previous lectures about the reaction of group 1 element with water. So here we are going to discuss about the group 2 elements with water. So these metals slowly they react with water and they form hydroxides and liberating hydrogen gas. So group 2 elements, they become more reactive toward water as we go down the group. Here is a general reaction given when metal react with water, it gives metal hydroxides, MOH whole twice plus hydrogen gas is released. So now we will discuss one by one about the different elements of the group 2 in the reaction with water, like beryllium. Beryllium, it is unreactive to water even at high temperature. Why beryllium is unreactive? Because it has very small size, and if its size is small, it has very high ionization energy. Like the removal of electron from the beryllium, it is very difficult, so it is unreactive toward water. Like one of the other reason of its unreactive nature is the formation of strong resistant layer of the oxide on its surface. Like beryllium, when it is treated with water, it reacts in the atmosphere with oxygen, and oxide layer is formed on its surface, which prevent it from its reaction with water, which lower its reactivity at the ordinary temperature. However, the oxide layer, it breaks up at certain temperature, like above 750, and the protection then fails, and then the beryllium react around 700 or more to give white beryllium oxide and hydrogen gas. अब अगर हम बेरिलियम को हीट करते हैं 700 या उससे हाई टेम्परेचर पे, तो जो बेरिलियम ऑक्साइड की लेयर बेरिलियम के ऊपर बनी होती है वो उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है। ठीक, अब जब उसकी ब्रेक डाउन हो गई तो अब बेरिलियम अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास बेरिलियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगी। हाइड्रोक्साइड यहाँ पे नहीं बन रहा है, यहाँ पे बेरिलियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बन रहा है। नाउ रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम एंड अदर एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 2 विद वाटर. All elements of the group 2, unlike beryllium, they react with cold water with increasing vigor to give the metal hydroxides and hydrogen gas. So the hydroxides formed, they are not very soluble, but they get more soluble as we go down the group. So the calcium hydroxide formed as white precipitate, but the formation of precipitate decreases as we go down the group because more of the hydroxide dissolve in water. Actually जो group 2 के element है beryllium के अलावा, वो जब उनके साथ इनका कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो जो रिएक्टिविटी है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ होती है। जैसे शुरू में जो और रिज़ल्ट में हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। जो शुरू में जो हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो वो प्रेसिपिटेट बनेंगे उसके वाइट, क्योंकि वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है। बाकी जो हाइड्रोक्साइड्स है वो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, वो बन जाएंगे। यहाँ पे हम उसको शो करते हैं। Why the reactivity with water increases down the group. So the reaction becomes easier as the energy needed to form positive ion falls. Like this is due to decrease in ionization energy as we go down the groups, which lowers the activation energy and therefore faster reaction occurs. एक्चुअली यहाँ पे गिवन है कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स विद वाटर क्यों इंक्रीज़ होती है? वो इसलिए इंक्रीज़ होती है क्योंकि आयोनाइज साइज़ बढ़ रहा है उनका और उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है, वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे तो इजीली रिएक्ट कर सकेंगे। अब यहाँ पे एक और बात भी हुई है कि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाती है। तो व्हाट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ नीडेड फॉर द रिएक्शन टू अकर एज गिवन ऑन द राइट साइड. So these all elements, they form hydroxides and they liberate hydrogen gas. Now we will discuss next about the reaction of group 2 elements with the oxygen and nitrogen. So first we discuss about the reaction with nitrogen. All the elements of the group 2, they react with oxygen and they form simple oxides. Like first general reaction is given to you, M and O2 give us MO. Now it do not give MO2 because M and O has -2 and M has +2 belong to second group, so they will cancel each other and we write the general formula of oxide MO. Like calcium oxide, it form normal oxide CaO.
Beryllium is less reactive metal in group 2. It resists to complete oxidation due to formation of beryllium oxide layer. We have already discussed. However, at high temperature, it reacts and it form beryllium oxide coating, which prevent beryllium from high temperature. यानी beryllium आम temperature पे react भी नहीं करता. अगर high temperature पे oxygen के साथ treat किया जाए तो ये beryllium oxide layer बना लेता है beryllium के ऊपर. वैसे ये आम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करता. नाउ फॉर्मेशन ऑफ पर ऑक्साइड्स, इट मीन हमारे पास जो सिंपल या नॉर्मल ऑक्साइड है उसके अलावा पर ऑक्साइड्स भी बन सकते हैं, जैसे स्ट्रॉन्शियम और बेरियम. दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड दे गिव पर ऑक्साइड्स ऑन हीटिंग, वाइल द अदर एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप दे डू नॉट फॉर्म पर ऑक्साइड्स. लाइक बेरियम व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म बेरियम ऑक्साइड्स, it is barium peroxides. Some of the students ask in previous lecture like how it is peroxide. So in case of peroxide we write O2 minus 2. So if you write above O2 minus 2 and barium belong to second group, so if you write above barium plus 2, so minus 2 of O2 which is peroxide state and plus 2 of barium, they will cancel each other. So we can write BaO2. It's now barium peroxide, as I have discussed in my previous lecture. Now the reaction of strontium with oxygen, it also forms strontium peroxide. Now reaction with nitrogen, all group 2 elements, they react on heating with nitrogen and they form nitrides of the general formula M3N2, because 3 is the oxidation state of nitrogen minus 3 and M is the oxidation state of 2 is the oxidation state of metal plus 2. These nitrides are white solids mostly and they are ionic in nature except beryllium nitride. Beryllium nitride is not ionic in nature, it is covalent in nature due to its small size of the beryllium. Later on in the next topic, inshallah, we will discuss about the ionic and covalent nature of these oxides and nitrides. Beryllium nitrides and about their solubility. Beryllium nitride, which is covalent in nature due to small atomic size of the beryllium. Now the general reaction of the nitride formation is M is a metal in the solid state. When it is treated with nitrogen gas, it results in the formation of, on heating it reacts, it results in the formation of M3N2 solid state. So beryllium nitride is B3N2 and magnesium nitride is MgN2. Now the summary of this topic is given in the form of table. If you look at the first block from left to right, beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium elements are given of the second group. Then their atomic numbers, then their atomic radius is given. Atomic radius is increases from top to bottom, as we have discussed. The melting point, it will decreases from top to bottom, while in case of first ionization energy, it will decreases because the atomic radius will increases, and the electronic configuration is also given. In each S shell 2 electrons are present because these are the members, all are the members of group 2. The melting and the boiling point, we have discussed already about this trend in very much detail. Now homework. The short questions of the exercise, question number 1, question number 5, question number 6 and question number 7, you write it in the form of assignment and learn it also. And the long question is question number 8. And then is another question given which is generally discussed in the topic but not present in the exercise, but it comes in paper, like discuss the trend in reactivity of group 2 with water, oxygen and nitrogen. But dear students, क्वेश्चन नंबर 8 को आप इस तरह अटैम्प्ट करेंगे जैसे आपके बुक में गिवन है कि डिस्कस द एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 1A एंड ग्रुप 2A. सो अब अगर आपको आ जाता है डिटेल में क्वेश्चन ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और अगर आप अलग से लिखेंगे ग्रुप 1A के बारे में फिर ग्रुप 2A के बारे में अलग से, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो आप कोशिश करें कि इसको इस तरह से अटैम्प्ट कर लें कि आप उसमें जनरली ग्रुप 1 का थोड़ा सा डिस्कस करें, हर एक प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी लेके, और उसके बाद उसमें ग्रुप 2 का थोड़ा सा डिस्कस करें. शुरू में आप खैर डिटेल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या थोड़ी सी एक आध प्रॉपर्टी ले सकते हैं और एलिमेंट्स मेंशन कर सकते हैं ग्रुप के. ये आपका असाइनमेंट है और आपने प्रॉपर तरीके से इसको करना है, क्योंकि आपको जिस तरह एक्सरसाइज में क्वेश्चन होते हैं, गिवन होते हैं, उस तरह से अक्सर आपको पेपर में भी आ जाते हैं. फिर कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किया था कि जैसे मैट्रिक लेवल में भी किया था और सेकेंड ईयर में भी, कि अगर आप ये जो बाज़ टॉपिक्स हम डिस्कस कर लेते हैं लेकिन आप हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देती हैं,
तो स्टूडेंट्स, आप लोग ये जो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो टॉपिक्स के फॉर्म में है, एक्सरसाइज में नहीं गिवन, वो भी आप लोगों ने अटेम्प्ट किए करने हैं इन द फॉर्म ऑफ असाइनमेंट, क्योंकि ये भी आपके पेपर में मोस्टली आ जाते हैं। और कोशिश करें कि लर्न भी करें, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत थोड़ा रह गया है। नाउ थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।